السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نازیہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا پسندیدہ پروگرام شام فیض نازیہ علی کے ساتھ۔ آپ ہمیشہ شام فیض میں اپنے پسندیدہ مہمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور میں بھی آپ کی فرمائشیں پوری کرواتی جا رہی ہوں۔ آج بھی میرے ساتھ ایک اہم شخصیت موجود ہیں۔ جہاں تک میں بات کرتی ہوں ہمیشہ کہ ہم پالیٹکس کے اندر جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں نا، تو سیاست میں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں۔ جب وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو ملک کی بھی خدمت بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے گل محمد رند صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ اگر میں ان کی پہلے بات کروں، ابھی بھی عہدے کی بات کروں، تو وائس پریزیڈنٹ سندھ ہیں پی ٹی آئی کے۔ اس کے ساتھ ہی ہم جب بات کرتے ہیں فیڈرل کی تو پھر فیڈرل کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے پالیٹکس میں آئے اور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال، کیونکہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں کووڈ آ چکا ہے، اس سے پہلے ہم نے اتنی ویوز دیکھ لی، اب تو ویکسین بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہمارے یہاں بہت سارے خدشات موجود ہیں۔ ہم موجودہ صورتحال پر بات کریں گے، خاص طور پر بہتری لانے کے لیے کہ کیا ہو سکتا ہے جس سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں، جب آپ ایک سیاستدان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پر بات کرتے ہوئے ان کی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں، آپ سب کے بارے میں، ملک کے بارے میں، تو آپ سب بھی جاننا چاہتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ آج وہ سوالات بھی ان سے کریں گے ہم۔ السلام علیکم، آپ کو ویلکم کریں گے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ میں۔ اور ہمارے ناظرین کو ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کون سے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو آپ کے لیے سوالات بھی آ چکے ہیں، ریڈی ہیں اس کے لیے؟ اچھا، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ بچپن کی، کیونکہ اہم انسان کی زندگی کی جب بات ہوتی ہے اس نے بہت کچھ اچیو کیا، کسی پوزیشن پہ گیا، لیکن بچپن زندگی کے ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس کی یادیں بھی بہت نایاب ہوتی ہیں۔ کچھ اپنی پیدائش کے بارے میں بتائیے، کون سے شہر میں ہوئی اور پرورش پیرنٹس میں کس سے زیادہ اٹیچ تھے، بہن بھائی کتنے تھے؟ ایک ساتھ میں اتنے سوالات کر لیتی ہوں نا، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، تاکہ وہ آرام سے بولیں پھر۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بچپن تو بالکل ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جی، نواب شاہ کے پاس ہمارا گاؤں تھا، وہاں میری پیدائش ہے۔ جی، اور یہاں اس وقت بیکورڈ تھا ہمارا ایٹماسفیئر، کہ ہمارے گاؤں میں اسکول بھی نہیں تھا۔ اچھا، تو ہم 2 کلومیٹر دور ایک اسکول تھا، وہاں پڑھنے جاتے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے تعلیم لے کے اور فیڈرل سیکٹری پہنچنا یہ بہت ایک سفر ہے۔ میں نے اس لیے مینشن کیا اسے خاص طور پر، کم سے کم مجھے 2 گھنٹے چاہیے آپ کو بتانے کے لیے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کور کروں۔ تو وہاں سے تعلیم لی، ماں باپ کا شوق تھا۔ ہم 2 بھائی تھے، میرا بڑا بھائی وہ بھی 22 گریڈ میں پہنچا، وہ بھی فیڈرل سیکٹری رہا۔ پھر ہم پرائمری کے بعد نواب شاہ ڈی سی آئی اسکول میں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت ڈی سی آئی اسکول نواب شاہ کا بہت بڑا نام تھا، جیسے پبلک اسکول ہے، گرامر اسکول ہے۔ تو وہاں پہنچے، وہاں سے میٹرک کی، پھر میٹرک کر کے پھر ہمارے پیرنٹس نے ہم دونوں بھائیوں کو شفٹ کیا حیدرآباد۔ اچھا، نواب شاہ سے حیدرآباد، اچھا یعنی کراچی اور بعد میں؟ ان کا ایک ڈریم تھا کہ میرے دونوں بیٹے سی ایس پی آفیسر بنے۔ اچھا، میرا والد صاحب 4 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، وہ پی ایچ ڈی وغیرہ نہیں تھا، لیکن اس کا ایک ڈریم تھا کہ میرے بیٹے سی ایس پی آفیسر بنے۔ تو پھر ہمیں حیدرآباد شفٹ کیا، پھر وہاں کالج، یونیورسٹی، اور پھر میرے بڑے بھائی نے سی ایس ایس کا امتحان دیا تو وہ پاس ہو گئے۔ تو والد صاحب کی ایک ڈریم تو پوری ہو گئی۔ پھر جو میرے اوپر ڈنڈا اٹھایا انہوں نے، والد صاحب نے اور بڑے بھائی نے، کہ بھائی تو نوکری کی، بابا کو شوق نہیں ہے کہ تو نوکری کر، بابا کا ڈریم ہے۔ دونوں بیٹے میرے 22 گریڈ میں ایک دن پہنچے۔ اچھا، دیکھ لیں، لیکن پھر آپ نے چیلنج کی طرح اسے ایکسیپٹ بھی کیا۔ ان پڑھ ماں باپ، میں اس میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لازمی نہیں کہ آپ کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہوں، کوالیفائڈ ہوں۔ بالکل۔ پھر ہم سی ایس پی بن گئے دونوں۔ پھر 17 گریڈ سے 22 گریڈ کا سفر چلا، مختلف گورنمنٹ، کبھی ماشاء اللہ میری پہلی ڈیوٹی جنرل ضیاء کے ساتھ تھی۔ اچھا، میں اس کا پروٹوکول آفیسر رہا ہوں 3 سال، تو وہ دور بھی دیکھا۔ پھر اچھا، انہوں نے جو ہم ابھی سیاست کی بات کر رہے تھے نا، تو جس نے ہمارے ملک کی اس طرح کی ساری جو لائٹس ہم بولتے ہیں ڈفرینٹ لائٹس، وہ سب چینج ہوتی ہوئے دیکھی ہیں۔ لیکن دیکھیں پھر ناانصافی ہو گئی نا، جہاں بچپن کی بات ہوئی، اس کے بعد اسٹوڈنٹ لائف کی بھی کوئی قصہ تو یادگار سنائی ہے ہمارے ناظرین نے؟ بہت سارے نہیں، یادگار۔ اسٹوڈنٹس لائف میں شرارتیں بہت ہوتی تھی،
भाई आपस में रात दिन को लड़ते थे, रात को एक दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन हमारी वालिदा जो थी एक अनपढ़ थी, लेकिन वो एक डिक्टेटर टाइप की औरत थी। अच्छा, Dominated। यानी पेरेंट्स में ज्यादा उनकी तरफ से ज्यादा आपको। तो हम उसको अम्मी को तंग करते थे कि अम्मी तू अगर पुराने दौर में पैदा होती तो तू रजिया सुल्ताना बनती। तो वो है। फिर एक दफा मुझे मूड था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँ आज। अच्छा। वो जब गांव में पढ़ता हाँ। था तो मैंने अपने शूज रखकर उसके ऊपर बैठ गया कि जाना नहीं है। नहीं मैंने स्ट्राइक कहा, डाल मुझे दी। शूज दो तो मैं स्कूल जाऊं। अच्छा, छुपा दिए। तो बाद खुद बैठ गया उसके ऊपर, शूज के ऊपर खुद ही बैठ गया। अब अम्मी सब बहनें शूज ढूंढ रहे हैं जी। वाह शूज हों तो मिले। उस वक्त तो ये जमाना नहीं था 10 जोड़े हों, एक ही जोड़ा होता था, काले कपड़ों पे भी, ब्राउन पे भी। लेकिन उस जमाने की बात नहीं है, जो मुल्क की हालात है ना, इस वक्त भी मिडिल क्लास के तो जितने भी फिर- बच्चे हैं तो वो फिर यही हाल अम्मी है को उनका। आया गुस्सा। उसने कहा अच्छा तू नंगे पाँव आ जाएगी, जी। इसलिए हम उसको रजिया सुल्तान है। इसने जैसे मुझे उठाया तो जूते नीचे से निकल आए। हाँ। वो फिर जूते पहन के तो इस तरह छोटी छोटी शरारतें होती रहती थी। उसमें मजा भी था, प्यार भी था। अपनायत थी बहुत। और छोटी छोटी शरारतों के साथ अभी जरा बड़ी गाँव में- शरारतें नहीं, वारदातें सुनेंगे गाँव में इनसे। ना बिजली, ना गैस, ना टेलीफोन, इतनी सादी लाइफ। और ये एग्जाम्पल भी है ना। मैं माजरत के साथ इंटरप्ट करूंगी, वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज नाजी अली के साथ। अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाजी अली के साथ और मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, गुल मोहम्मद रिंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और जो बात हो रही थी शरारत की ब्रेक से पहले, मैंने आप सबसे कहा था कि शरारतें तो हो गई बचपन की, ज़रा जवानी की वारदातों की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत छुपे रुस्तम में ये, जहाँ आप पॉलिटिक्स के अंदर देख रहे होते हैं ना, उससे पहले मीडिया के ये सारे मज़े ले चुके हैं, इंजॉय कर चुके हैं उसे ऑन स्क्रीन। मैडम ये जो 40 साल का सफर है जी। 17 से 22 ग्रेड तक, जी। इसमें तो बहुत सारे वारदातें हुई होंगी यूनिवर्सिटी में। लेकिन नहीं, आप मीडिया की बताएंगे हमारे नाज़रीन को। लेकिन मैं एमडी टूरिज्म था तो मैंने टूरिज्म पे लेक्चर दिया जी। कि टूरिज्म है क्या। हाँ। तो वो टीवी में प्रोग्राम अब्दुल करीम बलोच साहब ने देखा, उस वक्त वो जीएम थे। अच्छा, इस तरह से आपकी हाँ। एंट्री हुई। तो उसने मंजूर कुरैशी जी। को बुलाया कि यार इसको पकड़ो, जी। ये बहुत अच्छा बोलता है और इसको बुलाओ कर। तो मंजूर कुरैशी ने मुझे कहा आए अब्दुल करीम साहब ने आपको चाय पे बुलाया। मैं गया, वहाँ बात हुई तो उसने कहा कि आप कंपेयरिंग करें। अच्छा, मैंने कहा जी मैं अच्छा डिबेटर हूँ लेकिन कंपेयर लेकिन शौक था। देखिए नाजरीन भी देख रहे होंगे ना, सब बोलते नहीं किसी तरह मौका मिल जाए, तो ये तो मिला। उसने जो मुझे ऑफर दी वो इतनी अच्छी ऑफर थी। उसने कहा जो आपके प्रोग्राम रिकॉर्ड होंगे वो प्रिजर्व होंगे। अच्छा। ये लाइब्रेरी प्रोग्राम होंगे, जब तक पीटीवी होगा हाँ। ये प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। हम्म। तो हर प्रोग्राम में हम एक सिंगर को इंटरव्यू करते थे, जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उस सिंगर को हम पूछते थे यादें ताज़ा कर रही हूँ फिर मैं हाँ, आपकी। आप कहाँ से आए। कई ऐसे भी सिंगर आए, बाप ने भी गाया, बेटे ने भी गाया, हाँ, पोते इस ने तरह भी गाया। होता है तो बिल्कुल। इस तरह फिर मैं आया टीवी में, फिर वो प्रोग्राम बहुत हिट गया। उस वक्त एक ही चैनल था, सब कोई देखता था। हाँ। प्राइम मिनिस्टर भी देखता था तो आम आदमी भी देखते थे। बस फिर हमने तकरीबन 100 एपिसोड किए जी, थे और जी। मंजूर कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम है हमारे मीडिया में, उसके साथ मजा आया काम करने। उसके बाद फिर करीम बलोच साहब ने मुझे कहा कि आप ये टीवी अवार्ड्स करें। अच्छा, वो एक्सपीरियंस भी रहा और आपका। फिर मैंने टीवी अवार्ड्स में कंपेयरिंग की। तो उन्हीं दिनों में मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू हो गई थी पीटीवी की। हाँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मॉर्निंग भी करें। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है दोस्ती में, लेकिन मज़ा आ रहा था, उसे एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, उसके साथ साथ ही अगर क्योंकि आगाज़ में ही हमारे नाज़रीन को बताया सियासत के साथ साथ इंसानी खिदमत का, तो अगर मैं बतौर सोशल वर्कर बात करूं कि किस तरह से वो जज्बा आपके अंदर मौजूद था, आगाज़ कैसे किया और फिर सियासत में कैसे आए? देखिए मैडम, मैं समाजी काम में मेरे जो है ना एक एम था, 2 आदमियों से मैं इम्प्रेस था, एक इमरान खान, जी। दूसरा ईदी साहब। अच्छा, इमरान खान से तो मुलाकात होती थी उन दिनों में, वो शिकार पे आते थे, नवाब साहब, वो पॉलिटिक्स से दूर थे। हाँ। उस वक्त सिर्फ उस वक्त कौन सा वक्त? मैं सबसे पूछती हूँ कि नाजरीन को हमारे जरूर बता दें, कितना पुराना वक्त? ये आप
20 साल लगा। जब वो क्रिकेट खेलते थे उन दिनों में वो नवाब शाह शिकार पे आते थे, तीतर का शिकार, फिर रात को हम गपशप लगाते थे। फिर मैं ईदी साहब से 2 दफा मिला, मैंने कहा जी अच्छा। मैं इस तरह एक इदारा अपने माँ बाप के नाम से बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इदारे की एक खूबी होगी, इसमें डोनेशन नहीं होगा। अच्छा। मेरा एक फेथ है, चैरिटी वो है जो आप अपने जेब से करें, और इसको मैं अपनी जेब से चलाऊंगा। तो ईदी साहब बहुत बड़ा नाम है, उसने मुझे कहा बेटा ये बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी नीयत है तो करो। फिर मैंने वालिद साहब के नाम से हाजी गुलाम नबी रिंद जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आज से 15 साल पहले उसकी बुनियाद रखी, जी और माशाल्लाह आज तक भी हमारी फ्री 24 आवर्स फ्री एम्बुलेंस सर्विस, फ्री स्कूल्स, बच्चों की शादियां कराना, बिल्कुल। व्हील चेयर लेके देना, इस तरह बहुत सारे काम हैं वो हम कर रहे हैं 15 अच्छा, साल उसी से। के साथ जैसे मैंने अभी नाजरीन को ये भी कहा इन 2 कि आदमियों से मैं मुतासर हुआ। बोलने देती हूँ, देखिए इनका मेरा वाला काम भी रहा है ना, बोलने देती हूँ, चले बोले। नहीं, मैंने कहा वो इस तरह मैं इमरान खान से फिर पॉलिटिक्स का तो बिल्कुल मूड नहीं था ना। नहीं था नहीं, मूड, नहीं, नहीं। नहीं था मूड, बिल्कुल मैं भी नहीं तो था, यानी बस सिर्फ नफरत- सोशल करना है या मीडिया में पॉलिटिकल नहीं करना था। है। रिटायरमेंट के बाद फेडरल सेक्रेटरी रिटायर होता है तो इस्लामाबाद ही सेट होता है। वो कहीं हाँ, और देखिए नहीं मैंने जाता। 2 बार जमाया था आगाज में इंट्रो में फेडरल, इसीलिए। तो लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं गांव जाऊंगा जी। और गांव में लोगों की खिदमत करूंगा। तो बस उसके बाद चले गए गांव। जब रिटायर हुआ तो उसके बाद देखे हालात, देखे अपने इलाके के, तो ये अनपढ़ एमपी मैंने तो कुछ नहीं करते, ये तो बिल्कुल, लोगों को बर्बाद बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे जहन में आया कि मैं खान साहब से मिलूं और जी। पॉलिटिक्स में जाऊं। हाँ तो गवर्नर पंजाब सरवर खान साहब, ये हमारे पुराने दोस्त हैं लंदन से, तो उसको मैंने एक दिन कॉल की ना, मैंने कहा सर मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। हाँ कहते परसों इमरान आ रहा है मेरे घर पे, लाहौर, तुम आ जाओ। जी तो सुबह को मैंने फ्लाइट ली, चला गया उधर। तो सुबह को खान साहब उधर आए, हम 3 आदमी थे, सरवर खान, मैं और अपना खान साहब जी। और अलीम खान साहब हाँ। वहाँ बैठे। हमारे नाजरीन को ही मैं बताती जा रही हूँ ना, ये हुकूमत में आने से बहुत पहले की बात है, उसके बाद सब्र करना पड़ा। वही जी वही फिर तो हमने काम किया ना। मैं आपको बताऊं कि सिंध में पीटीआई का कोई नाम नहीं था। जी हमने आके यहाँ जितने खान साहब के जलसे किए अंदरूनी सिंध, जी वो तो तारीख का एक हिस्सा है। हाँ दादू, सैमन, उसके बाद झांगारा बाजारा, कश्मीर, अपना घोटकी, नवाब शाह, ये सब खान साहब को फिर जब मैं पॉलिटिक्स, अच्छा फिर वहाँ खान साहब ने कहा कि जी मुझे लिखे पढ़े लोग चाहिए जी और इंसाफ आप आए पॉलिटिक्स में। हाँ तो मैंने कहा जी मुझे 1 हफ्ता भी दें, मैं अपने दोस्तों से मशवरा करूं। खान साहब तो खान साहब हैं ना। उसने कहा कोई नहीं, मीडिया को बुलाओ, ज्वाइनिंग करो। ओह पकड़ लिया। पकड़ लिया और ज्वाइनिंग की, और आज आपके सामने। बिल्कुल, लेकिन अब नाजरीन के सामने हम ब्रेक की सूरत में आ रहे हैं। नाजरीन देखते रहिए शाम फैज नाजिया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाजिया अली के साथ, और मैं ज़रा इंटरप्ट किए जा रही थी ना जब बात कर रहे थे गुल मोहम्मद रिंद साहब, क्योंकि मैं चाह रही थी कुछ अब ज़रा मज़ेदार बातें, क्योंकि पॉलिटिक्स पे भी हो गई, सोशल बातें भी बहुत हो गई लाइफ पर। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं कि खान साहब के साथ जब आप आए, पीटीआई का हिस्सा बने, उससे पहले से ही आपने कहा जानते थे, तो जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, हम क्योंकि पॉलिटिक्स पे उस पर बात करेंगे किस तरह से आए, तो क्या क्रिकेट का शौक था? स्पोर्ट्स में मैं सवाल करूं तो क्रिकेट ही जवाब आएगा या कुछ और आने वाला है? क्रिकेट से शौक था। हाँ। मैंने 2 वर्ल्ड कप फाइनल देखे जाके। हाँ। एक ऑस्ट्रेलिया इसी शौक में? यस, इंग्लैंड में। और खान साहब एक आइडियल था। जी और पॉलिटिक्स भी मैं खान साहब की वजह से आया, क्योंकि बिल्कुल। हमारी फैमिली में पहले कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। तो अक्सर खान साहब को सियासत के बगैर भी देखा, स्पोर्ट्समैन भी देखा, पॉलिटिक्स में विदाउट पावर भी देखा, जी। और फिर पावर में भी देखा। हाँ जब पावर में नहीं थे तो अक्सर उसका एक खास जुमला होता था मेरे जी साथ, जी जी किरण साहब जरदारी से इलेक्शन लड़ना है, अच्छा जहाँ भी मिले। अच्छा, ये इससे पहले की बात बता रहे हैं आप, नॉन पॉलिटिकल, यानी जब नहीं, पॉलिटिक्स जब का मैं सेंस, politics उसके में बाद वो आ खुद भी, गया, ठीक है। हम जलसे जुलूस वगैरह भी कर रहे थे, तो सब सिंध में उस हम लोग कैंपेन करते में थे, हमारी मुख्तलिफ। टीम करती हाँ। थी।
मोन्जो दड़ो एयरपोर्ट पे जैसे जहाज से उतरा, रंजीत साहब याद है ना, जरदारी से इलेक्शन लड़नी है, डॉक्टर आरिफ अलवी के घर पे था हमारा सिंध काउंसिल की मीटिंग, मुझे स्टेज पे बुलाया, रिंद आ जाओ, मैंने कहा याद है ना जरदारी से इलेक्शन वो फिर ऐसा रट गया ना, जो भी मेरा दोस्त भी मिलता था कहता है तू जरदारी से इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, सबका ही वही बन गया होगा तो ना एक जुमला। नवाब शाह से इलेक्शन लड़ा जी, और खान साहब के हुक्म के मुताबिक जी, जीतना तो नवाब शाह मुश्किल है, हाँ, लेकिन हमने लेकिन नहीं, खान- डटे रहे खान का आप। वायदा पूरा किया। हाँ। जी, जी। अच्छा, अभी की अगर मैं जिम्मेदारियों की बात करती हूँ तो क्या, यानी अभी क्या देख रहे हैं सूरत हाल, जैसे मैंने मुल्क के लिए कहा ना कि हमारे यहाँ तो कोई पॉजिटिव चीज़ भी करें तो उसमें हम नेगेटिव चीज़ें, हमारी मेजॉरिटी मुल्क में यही होता है कि नहीं, उसको अच्छी चीज़ को हमें स्पेस देना चाहिए। वहीं पर जब हम कोविड की बात कर रहे हैं तो वो भी यानी इतनी वेव्स आ चुकी, अब किस तरह से हमारे मुल्क को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर अभी आप कराची में मौजूद हैं, अगर हम कराची की बात करते हैं तो किस तरह से हो सकती है देखिए, खूबसूरती? मैडम, एक चीज पूरे कौम को सोचना चाहिए कि खान साहब का यह पहला टेन्योर है जी, और ये वाहिद लीडर हैं जो इससे पहले ना मिनिस्टर रहे, हाँ, ना कोई इक़्तिदार में रहे, एक नया बंदा है। जैसे आप क्रिकेट में भी देखेंगे कि नया खिलाड़ी आएगा तो कभी जल्दी आउट होगा, कभी स्कोर करेगा, लेकिन खान साहब का विजन इज वेरी प्रो गुड पाकिस्तान। वो सोच रहा है अच्छा पाकिस्तान बना के जाऊं। चलें, अब बातें हो गई ना, अब जरा इनको थोड़ा सीरियस और इमोशनल सब करके देख लिया, थोड़ा सता भी लेते हैं, सही है ना? कुछ ऐसे सवालात जो आप लोग भी भेजते हैं, आपकी फरमाइशें होती हैं, रेडी हैं आप? कुछ रैपिड फायर की भी कर लेते हैं। अच्छा, एक वर्ड मैं बोलती हूँ और उसमें आपने भी जवाब देना है सिर्फ एक वर्ड में, ऐसा पॉसिबल है आपके लिए? चले, मैं पहले सिर्फ क्रिकेट। इमरान खान। हाँ, मुझे पता था, देखिए ये वाला सवाल मैंने इसीलिए किया है। जिंदगी? खूबसूरत। अच्छा, टाइम, वक्त? चैलेंज। अगर अब हम बात करते हैं दुनिया, दुनिया ओपन फॉर एवरीबॉडी। अच्छा, अब इनसे जरा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेंगे, अब एक वर्ड में नहीं है। पीटीआई जैसे एक चीज होती है, उसकी फिर आपने पूरी एक्सप्लेनेशन। नीड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये जो देहाती पॉलिटिक्स से हमें निकलना पड़ेगा। हाँ, देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन पे सही क्वेश्चंस पे आ गई ना, आप सबके यही है ना? लिखे पढ़े लोगों को कौम को आगे लाना चाहिए। अच्छा, फूल? फूल गुलाब। अच्छा, एक फरमाइश है जो हमारे नाजरीन करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते ना। मैं अभी एक इस्लामिक स्कॉलर का कर रही थी, जब भी इनकी फरमाइश थी, बहरहाल उनसे कुछ चेंज करना पड़ा। अगर मैं फरमाइश आपसे करती हूँ सॉन्ग की, या कोई शेर सुना दें, या कोई डायलॉग कोई फिल्म का, कोई अगर दिलचस्पी है कुछ मूवीज में? ये मूवीज तो हमारे जमाने में वो बहुत खूबसूरत मूवीज होती थी, खास मोहम्मद अली साहब के, कि वो 50 साल में भी वो। अच्छा, देखते थे आप पाकिस्तानी मूवीज ही देखते थे? देखिए, लेकिन फेवरेट एक्टर इस वक्त डायलॉग कौन सा सुनाएंगे? नहीं, मैं डायलॉग मुझे तो फिर क्या सुनाएंगे? अब ये आप पर छोड़ दिया, फरमाइश हमारे नाजरीन की आपने एक तो पूरी करनी है। फरमाइश देखें मैडम, ये है कि हमारे जमाने में जैसे मज़ाया रोल जी, बहुत पसंद किए जाते थे। तो जो रंगीला की जो एक्टिंग होती थी उस वक्त, मुझे याद है जब वो आते तो पूरी तालियां बजती थी जी, तो उसका एक खास होता था कि छुरी है, पिस्टल है, तो टंगा उंगलियां, तो मेरे पास छुरी भी है, पिस्टल भी है, लेकिन मेरी टांगे कांप रही है। हाँ। वो एक मशहूर उस वक्त फरमाइश आपकी अभी भी पूरी नहीं हुई है। चलें, ठीक है, इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से, जो आपको हमारे चैनल की भी याद दिलाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक और गिफ्ट है हमारे नेटवर्क की तरफ से, शाम फैज की और फैज टीवी नेटवर्क की, आपको याद दिलाता रहेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इख्तिताम की तरफ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कोई हमारे चैनल के लिए, फैज टीवी नेटवर्क के लिए मैसेज देना चाहें तो वो दीजिए। थैंक यू, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करते। देखिए, फैज चैनल, ये वेब चैनल जो है इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है पूरे पाकिस्तान में, और हम भी बड़े शौक से देखते हैं, और आज तक जो प्रोग्राम दिए गए हैं शाम फैज़ में भी बड़े हमें पसंद आए, और इंशाल्लाह ये चैनल इसी तरह आपकी टीम आप सब मेहनत करते रहेंगे, बिल्कुल। और इंशाल्लाह एक दिन इससे भी आगे तरक्की। इंशाल्लाह, सो नाइस ऑफ यू। और फिर हम आपको जहमत भी देंगे एक बार फिर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ आपने देखा, और हमेशा की तरह आज भी पसंद किया होगा। देखें, आपकी फरमाइशें भी सवालात की पूरी करवाएं, ये और बात है कि फ़िल्म का डायलॉग आ गया, सॉन्ग और फिर शायरी नहीं हो सकी।
چلیں دیکھتے رہیے شام فیض نازی علی کے ساتھ، اور خاص طور پہ اپنے ملک میں یونٹی کی لیے کوشش کرتے رہیے. کہیں سے بھی کسی بھی شعبے سے موقع ملتا ہے، جس جگہ پر بھی ہیں اپنا حصہ ڈالیے اپنے ملک کے لیے. مجھے نازی علی کو رکھیے دعاؤں میں یاد. پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.